Hi everyone. So today with us we have Mrs. Preeti Ahuja. Mrs. Ahuja is a teacher having a vast experience of 2 decades. In today's interview, she will be guiding the students of 10th and 12th standard in respect to the boards, also known as the Hawa or the terrifying period in a student's life. So I welcome you, Mrs. Ahuja. Thank you so much for taking out your precious time. My pleasure. Thank you. So, without wasting much of the time, let's commence with certain questions which I wanted to ask. And these questions have been extracted after stimulating and serving among various 10th and 12th students. So, I really hope that their doubts are also cleared during this interview. So, my first question is, nowadays we have been observing that there is so much pressure upon the students. They are told कि अगर तुम्हारे नंबर नहीं आए तो तुम्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, तुम्हारा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता. So how do you deal with such a student as well as their parents' mindset and mentality? Okay. See, Kuber, we have something serious to discuss here. The world is teeming with billions and billions of people. You need some criteria to mark out the extraordinary from the ordinary. So there is when the marks come into play. तो मेरा ये आर्ग्यूमेंट है कि मार्क्स का रोल हम कम तो नहीं कर सकते, मतलब मार्क्स विल ऑलवेज बी वन ऑफ द क्राइटेरिया, बट रिमेंबर इट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया. देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट कैन मेक यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी. देखिए, अगर आप जानते हैं संदीप गजकस, देयर इज वन फेलो, आप गूगल कीजिए इसे. ही हैज कम अप विद अ मल्टीनेशनल शू ड्राई क्लीनिंग कंपनी. Why? He was obsessed with having clean shoes. वो कैडेट था एनडीए का, उसे हर वक्त साफ जूते चाहिए थे. This obsession made him into something of a millionaire. तो अगर आपके पास you have any such talent, any passion, any hobby that is going to make you extraordinary, it is very well, go after it. But if you really don't know कि मेरे में क्या special है, then stick to studies. Academics is a safe choice. Right. Very well said, ma'am. इनफैक्ट मैम आई रिमेम्बर जब बोर्ड्स का लेवल 2015 में काफी इंक्रीज हुआ था एंड अब इस साल पैंडेमिक के वजह से स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अटेंड देयर स्कूल्स, इवन देयर ट्यूशंस हैव बीन इन अ ऑनलाइन मोड completely. So certainly the scope of their studies have been hampered. And I know थोड़ा बहुत syllabus cut हुआ है, but some say it is enough, some say it is not enough. तो आपके हिसाब से आप क्या स्पेकुलेट करते हैं कि सीबीएसई इस बार बोर्ड्स के पेपर्स का क्या अप्रोच रखेगी? सीबीएसई इस बात को कंसिडर करेगा कि नहीं, इस बार हमें बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं बनाने चाहिए, बिकॉज सर्टेनली ये कोई कहने की बात नहीं है कि इस बार की क्या सिचुएशन रही है फॉर एवरीवन. सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? ओके, तो पहले तो मैं एक मिथ क्लियर कर दूं जो सबके मन में रहती है कि सिलेबस रिड्यूस होना बच्चे के फेवर में. ऐसा बिल्कुल नहीं है. इट इज क्वाइट द ऑपोजिट. आप इमेजिन करिए, आपको एक बुक मिलता है, उसमें से आपको 80 मार्क्स का पेपर बनाना है. सो यू गिव ड्यू वेटेज, सम वेटेज टू ईच पार्ट, राइट? अब इन्होंने क्या किया, सिलेबस कर दिया 30% कम. दैट मीन्स अमाउंट ऑफ कंटेंट आई हैव इज लेस, और मुझे अभी भी 80 मार्क्स का ही पेपर बनाना है. दैट मीन्स वेटेज ऑफ एवरी सब्जेक्ट इज मोर नाउ. What will they do? They will dig into depths और अंदर घुस के क्वेश्चन बनाएंगे. What does that mean? More uncanny questions, questions on understanding and estimating and so many things जिसके लिए बच्चे प्रिपेयर नहीं होंगे. So please, ऐसा बच्चे कभी ना अपने आप को फूल करें कि सिलेबस कम है तो कुछ अच्छा होगा. नहीं, you have to stop fooling yourself and actually start working hard, because any day, any time, board exams will define your future life and you should be prepared for it. You have to work hard for it. एंड अदरवाइज अगर बोलते कि इजी या डिफिकल्ट, तो मेरा एक ही आंसर है उन सबके लिए कि द बेटर यू प्रिपेयर द लकीयर यू अपेयर. सो प्लीज नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल मैनेज देमसेल्फ. कि सीबीएसई ने हमें 1.5 इयर्स दे दिए, मतलब उन्होंने 5 महीने पेपर डिले कर दिए, 30% सिलेबस कम कर दिया. अब अगर आप इससे भी ज्यादा कंसिडरेशन चाहते हो, मुझे नहीं लगता कि मिलेगी. आपको चाहिए कि भाई reduce syllabus, more time means that you should be prepared. Otherwise difficulty level same रहेगा जैसे पहले रहता है, ना ज्यादा ना कम. It has to be right. And मैम आई ऑलवेज बिलीव दैट पढ़ाना जैसे एक आर्ट होता है, वैसे पढ़ना भी एक आर्ट है. एंड आई रियली डाउट कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इस चीज को कंसिडर किया जाता है. एंड दिस इज क्वाइट डीप एक्चुअली.
तो स्टूडेंट्स को कैसे बोर्ड्स की तैयारी या कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, आप उस रिगार्डिंग क्या टिप्स देना चाहेंगे? पहले तो हम ये जान लें कि टिप्स बहुत सी अवेलेबल है, लेकिन कुछ बच्चे सिर्फ वो टिप्स चूज कर लेते हैं जो उनको सूट करती हैं, जो उनके कंफर्ट लेवल को मैच करती है। मैं उनके लिए टिप्स नहीं दे रही हूँ, वो मुझसे ज्यादा जानते हैं, दे आर स्मार्ट जनरेशन. Yes, if you are really interested to know what does experience tell me about preparing, तो बेटा एक जो फर्स्ट एंड फाइनल टिप है ना, उसको कहते हैं पढ़ो. Because there is no substitute to पढ़ाई, no substitute. हाँ, इसके अलावा मतलब आप ये देखो ना कि एक टिप मेरा ये हमेशा रहता है बच्चों को कि डोंट वॉच योर वॉच. हर वक्त आधा घंटा हो गया, ओ 1 घंटा मैंने बहुत पढ़ाई कर ली. नो, प्लीज, यू आर ग्रोन अप नाउ, यू नो योर स्टेमिना, योर स्ट्रेंथ, बिल्ड इट अप, बढ़ाओ. इनफैक्ट अगर कोई आपको बोल देता है कि पढ़ाई के बीच में आपको आधे आधे घंटे की ब्रेक लेनी है, तो पीपल आर सो स्मार्ट, वो कहते हैं पहले 4 ब्रेक ले लेते हैं फिर ही पढ़ना शुरू कर देंगे. यू नेवर, यू कांट गिव देम प्रॉपर टिप्स. बट यस, आप अपने आप को एक्सर्ट करिए, आप टाइम है. And when you are tired, take a break, take rest. There is no problem in that. But then go back to studies. ये जो चीजें आपकी स्टडीज में हैम्पर बनती है ना, ये सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स एंड आई डोंट नो PUBG, आई रियली डोंट नो ऑल द नेम्स, बट यस बेटा इनको गिव अप करो, क्योंकि वो सब बच्चों का कॉमन स्टोरी है. द 10 minutes I spend on Instagram are the best 4 hours of my day. So please, you have to stop doing, stop wasting time, and that's it. राइट, एटलीस्ट मैं इसमें ये तो कह सकता हूँ कि इस मामले में मैं लकी था कि हमारे बैच के टाइम पे कोई नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम नहीं था, सो डिस्ट्रैक्शंस कम थी. नेचुरली उस टाइम भी थी, बट जितना अवॉइड कर सकते थे करते थे. Right. You have been one of my best students and doing so well in life. You've been author, a budding advocate. I am sure you will do very well, but other people should take your advantage. Thank you so much. I'm sorry. Gee. Thank you so much. Means a lot. Right. So, ma'am, my final question now, and I'll not take much of your time now. And this question is quite an important one. अभी इस साल बहुत मुश्किल आई है, वेदर ये हम प्रोफेशनली बात करें या हम स्टूडेंट्स की भी बात करें, एंड स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए तो काफी ज्यादा मुश्किल, स्पेशली द 10th and 12th बैच. आई पर्सनली फील कि students are suffering from anxiety, depression, frustration. They can't go outside, they can't meet their friends. In fact, जब आप अपने friends या teachers से आमने सामने मिलते हैं, वो काफी आपके mind को भी relaxation देता है. And अब घर में बैठे बैठे आप ट्यूशंस के टेस्ट या प्री बोर्ड या स्कूल के कोई यूनिट टेस्ट आप जब घर में बैठे बैठे देते हैं, वो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर मैच नहीं कर सकता. तो अब इस रिगार्डिंग 10th और 12th के स्टूडेंट्स को, या फिर अब जो अगले बैचेस आएंगे, एंड अगर अनफॉर्चुनेटली ये पैंडेमिक कंटिन्यू रहती है, तो आप इन स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे? Okay, let's see. Yes, it has been a very hard year. Or students have suffered a lot. There is no second thought about this. But फिर हमें preparation, मतलब we should be like thinking कि बाहर की दुनिया इतनी unpredictable है, uncertainties इतनी है. Let's take it as a challenge. Let's take it as an एक ट्रायल ले लेते हैं कि ये एक ट्रेलर चल रहा था, जब मैं बाहर की दुनिया में स्टेप अप करूंगा तो ये सब बहुत नॉर्मल होगा. Nothing will be fixed, secure, etc. और हम दूर क्यों जाएं? अभी इसी टाइम में ऐसे काफी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस टाइम को यूज किया टू इनोवेट, अडैप्ट एंड राइज अबव द रेस्ट. अब रिजल्ट आएंगे, देयर विल बी पीपल हु विल बी स्कोरिंग 100 on 100. वो क्या कर रहे थे? व्हाइल द अदर्स वर प्लेइंग विक्टिम कार्ड कि ओहो हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, गलत हो गया, दे वर एक्चुअली थिंकिंग कि अब ये रियलिटी है, हाउ टू फेस इट. बट मैं सबको ये बोलूंगी कि बेटा जो the path to good marks, it is simple, but I never said it is easy. So you have to work hard for it. आपके पास अभी भी बहुत टाइम है. जिस दिन आप सोच लेंगे कि मुझे स्कोर करना है और आज से मैं एक्सक्यूजेस नहीं दूंगा, बल्कि मैं आपदा में अवसर ढूंढूंगा, उस दिन you will be able to do. हाँ, yes, जो आपने एक पॉइंट बोला कि बच्चे घर बैठ के एग्जाम्स दे रहे हैं और ऑनेस्टली नहीं दे रहे. They have got used to Google being by their side while giving their exams. तो ये जो प्रॉब्लम है, ये तो जब वो रियल पेपर देखेंगे ना, इट विल गिव देम पैल्पिटेशन. वो हैंडल ही नहीं कर पाएंगे कि ऐसा भी होता है कि बिना हेल्प के पेपर देना है.
So I think uske liye they have to start giving papers right now. They should contact their teachers, they should contact their parents. वो सब उनकी help कर सकते हैं to give an honest paper. And more importantly, please don't go to your friends for advice. Go to your parents, your teachers, mentors, because friends बेचारों को तो खुद advice चाहिए, उससे आप ना लेने जाएं अपने लिए. Just stop avoiding things and start working. Right. So certainly I'm very sure that all the students who are listening to you right now, they will be motivated and they will feel like that all their questions have been answered now. And all the best to all the 10th and 12th class students and all the 9th and 11th class students as well, because next year आपकी भी बारी आएगी. So I really hope कि इस इंटरव्यू से आपके काफी डाउट्स, काफी मिथ्स जो आपके फ्रेंड्स शायद आपको बता रहे हो या आपके माइंड में खुद आ रहे हो, वो डिसअपेयर हो जाएंगे. सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय व्यूअर्स एंड 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट. आई नो मई जून तक पेपर्स आपके शिफ्ट हो गए हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आपका रिलैक्सेशन पीरियड बढ़ गया है. दैट मीन्स कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि अब आप और मेहनत कर सकते हैं. So go get it. Yes, you can. Right. So thank you so much, Preeti ma'am, for doing this with me, and I am very sure कि ये interview बहुत ही useful होगी सब students के लिए. Thank you so much. Thank you. So this was Mrs. Preeti Ahuja. I shall be coming with more interviews with different personalities. एंड मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें जो भी एजुकेशन सेक्टर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको काफी हेल्प और उनके लिए काफी यूजफुल रहेगा. सो स्टे ट्यून टू माय चैनल. प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. इससे आपको भी जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी वो आप तक पहुंच जाएंगे. सो हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच.